Hello students, welcome to Coachify Live. So today we are here with another video on how to score 99 plus percentile in the quant section of CAT 2023. So guys, before proceeding to this session, I would strongly recommend you to watch this video till the end because this is not just another strategy video. What we'll be doing today is the detailed quantitative as well as qualitative analysis of past 5-year CAT papers. So the very first step in our today's session will be we have to understand what's exactly the CAT syllabus. So the syllabus is broadly divided into 4 subsections. What are the sections? Let's have a look one by one. So this is the very first section, arithmetic. So in this section, what are the topics that we have to cover? The very first topic is percentage. The other topic is profit, loss and discount. Then we have simple interest and compound interest. So these 3 topics are interrelated. Then we have ratio, proportion and variation. We have partnership, which is again an application of ratio, proportion and variation. Then we have average, mixture and alligation. We have one more topic which is time and work, and then finally we have time, speed, distance. तो ये जो भी टॉपिक्स एरिथमेटिक में हैं ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो कि आपने अपने 10th स्टैंडर्ड तक प्रिपेयर किए हैं. सो आई एम श्योर आपने ये टॉपिक रिकॉल किए होंगे अभी कि आपने डेफिनेटली ये टॉपिक्स पढ़े हैं, राइट. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट सेक्शन, एरिथमेटिक. देन द नेक्स्ट सेक्शन इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. अब देखो, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का भी कुछ पार्ट जो है वो हमने टिल आर 10th स्टैंडर्ड जो है प्रिपेयर किया है. बट यहाँ हमें जो ज्योमेट्री डिस्कस करना होता है वो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और इंटेंस हो जाता है. तो जैसे क्या इसमें टॉपिक्स हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स? तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज लाइंस एंड एंगल्स. देन वी हैव ट्राइंगल्स, we have quadrilaterals, then we have polygons, we have circles, coordinate geometry, trigonometry and height and distance. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में. Then the third topic is algebra, and sorry, the section is algebra, and then we have all these topics. So various equations we have to study: linear equation, quadratic equation, cubic equation and other higher degree polynomials. ये सारे topics हमें equation में cover करने. Then we'll be having different functions जैसे log function, logarithmic function, we have modulus, we have trigonometric function, we have inverse. All these functions we have to study in this particular topic. We have graphs, we have to study different graphs. There are so many questions that you'll see in the past CAT papers based upon graphs. So this topic is also very very important. Then we have progressions. I'm sure ये topic आप लोगों ने school level पे पढ़ा है. It is arithmetic progression. Then we have geometric progression, we have harmonic progression. We have one more topic which is inequalities, and then we have indices and surds. So these are all the topics that we have to cover in algebra. And then the fourth section is numbers and modern maths. numbers में क्या सारे topics आते हैं? तो सबसे पहले हमें classification of numbers डिटेल में पढ़ना है. जैसे real numbers, imaginary numbers, rational, irrational, then you have integers. In integers then you have whole numbers, natural numbers, prime, composite and so many other numbers जो कि हमें पढ़ना है classification में. Then we'll be having one more topic which is factors and multiples. We'll be having HCF, LCM, we'll be having divisibility, cyclicity, remainders. We'll be having number system in which we'll be talking about base system. Then we are having 2 more topics which comes under modern maths. One is permutation and combination, then the other one is probability. तो आप में से जिन भी लोगों के पास में 11th 12th में मैथमेटिक्स होगी उन्होंने डेफिनेटली ये टॉपिक्स पढ़े हैं. सो दीज आर द 4 सेक्शंस जो कि हमारा क्वांट सेक्शन कवर करते हैं, राइट. अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलना है and we have to analyze the trend of the QA section in CAT over the last 5 years. तो let's begin. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो आपको एक पीरियड इसमें देखने को मिल रहा है which is this one. तो 2018 was the year that is pre-COVID, in which there were how many questions in the quant section? There were 34 questions in the quant section. So there were total of 100 questions, and quant section में there were 34 questions. This was during COVID, this was again during COVID, and these 2 years are post-COVID period.
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले द पेपर वाज ऑफ 3 आवर्स एंड द क्वेश्चंस वर 100 इन टोटल. इन क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करें तो द सेक्शन टाइम वाज 1 आवर एंड देयर वर 34 क्वेश्चंस ईच इन 2018 and 2019. When we talk about 2020, total questions were 76, and in quant section there were 26 questions. Then again it reduced to 66 questions, out of which quant section comprises of 22 questions each in both the years, in the year 2022 as well as 2021. So this was the very first thing to notice. Uh, let's proceed. Now if we talk about CAT 2022 and if we compare the 3 slots that we are having, so the very first thing that we can observe is the weightage of 2 topics is very much in the paper. So what are those 2 topics? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. The very first topic is arithmetic, the second topic is algebra. So guys, this becomes really important, ठीक है. And इसको जैसे जैसे अभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको और इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों हमें इस पे फोकस करके चलना है, राइट. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 8 क्वेश्चंस वर बेस्ड अपॉन अरिथमेटिक, 8 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अलजेब्रा, तो 16 क्वेश्चंस. देन स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 की अगर बात करें तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का नंबर यहाँ पे 9 हो गया है, अलजेब्रा के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कम हो गए हैं, एंड देन स्लाइटली आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन इंक्रीज हो गया है एक क्वेश्चन से, और नंबर्स जो है वो एक क्वेश्चन से डिक्रीज हो गया है. सो इससे हम एक कंक्लूजन पे ये आ सकते हैं कि तीनों स्लॉट्स में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर मॉर्निंग स्लॉट में क्वांट में अरिथमेटिक सेक्शन के 8 सवाल थे तो इवनिंग स्लॉट में या आफ्टरनून स्लॉट में भी उतने ही सवाल आने वाले हैं. सो इट्स नॉट सर्टेन, राइट. बट ओवरऑल येस, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होता है वो स्लाइटली वेरी करता है, बट देन अगेन नॉर्मलाइजेशन जो है वो स्कोर को बैलेंस कर देता है, राइट. तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे. आज सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम एक 99 परसेंटाइल प्लस पे पहुंच सकते हैं. तो सबसे पहले अभी तक अगर मैं समराइज करूं तो हमने सिलेबस को समझा, उसके बाद में हमने 2022 के पेपर को देखा और एक ट्रेंड देखा कि ओवर द ईयर्स किस तरीके का एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में. तो अगर इसका कंक्लूजन निकालें यहाँ पे तो एक बात ये समझ में आ रही है कि अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा दीज आर द 2 टॉपिक्स जो कि लास्ट ईयर पेपर में 2022 पेपर में हाईली डोमिनेटिंग था. तो जिन्होंने ये 2 सेक्शंस पे काफ़ी अच्छे से कमांड की उन्होंने डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, राइट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कैट 2021. So again 21 में भी how many questions were there? So there were only 22 questions again. और अगर यहाँ पे देखें तो arithmetic slot 1, slot 2 and slot 3 तीनों में there were 11 questions. वहीं पे algebra के there were 5 questions in the morning slot, then afternoon slot में भी 5 and evening slot में there were 6 questions. Geometry and mensuration 3 questions, numbers and modern maths 3 questions. This is how the split is. So again if we observe carefully in 2021 was also we can observe that arithmetic was highly dominating the paper. So this is a very important conclusion, right. Let's proceed. When we talk about CAT 20, then again you can see कि arithmetic के ही maximum number of questions हैं तीनों slots में. 10 questions are from arithmetic, then 8 questions from algebra, here 7 questions, here 5 questions. Then there is a slight variation in geometry and mensuration and numbers, right. और आगे बढ़ते हैं. Let's talk about 19. तो 19 में अगर आप देखेंगे तो there were 2 slots only, morning and afternoon slot. So when we talk about these 2 slots, there were only 2 sections जो कि पेपर को highly dominate कर रहे हैं. तो what are the sections? One is arithmetic, other one is algebra. So total questions were 34 और 34 questions में से 27 questions are from these 2 topics. तो ये एक क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा हमारे पेपर में क्या है, राइट. और हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज अगेन 18. सो एरिथमेटिक के 14 क्वेश्चंस हैं, यहाँ 13 क्वेश्चंस हैं, देन 8 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर्स. यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के एंड 5 क्वेश्चंस हैं नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स के, राइट. तो ये पास्ट एक 5 ईयर्स का हमने देखा कि जो भी डिफरेंट स्लॉट्स में क्वेश्चंस आए उनका एक स्प्लिट क्या हमें देखने को मिल रहा है. तो अगर इन 5 सालों के डेटा को अगर देखें, उसको एनालाइज करें और एक कंक्लूजन पे आना चाहें
तो conclusion says that two topics are highly important. One is arithmetic, the other one is algebra, right? Let's proceed. अब अगर हम यहाँ पे what I have done for you is I have combined the data of past 5 years. और अगर आप ये 5 सालों का डेटा देखेंगे तो you'll come to know कि arithmetic जितने भी total questions आए last 5 years में arithmetic का maximum weightage है 42% questions are from arithmetic. Then the second most weighted topic is algebra, in which you will see there are 28.61% questions, right? Then comes geometry and mensuration, which comprises of 17% roughly, and then you have numbers and modern maths, which covers 12.35%. तो guys, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये डेटा कह रहा है कि ओवर द ईयर्स एरिथमेटिक की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है. अब ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवर द ईयर्स आईएम्स ने डाइवर्सिटी की डिमांड को बढ़ा दिया है कि ये पेपर केवल एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बन करके ना रह जाए, बाकी स्ट्रीम्स के लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएँ और मतलब दे ऑल्सो दे मस्ट बी हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद दी अदर स्टूडेंट्स, अदर एस्पिरेंट्स जो भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? तो ये यहाँ से एक हमें देखने को मिल रहा है. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, ये what I have done here is I have taken 5 years. Then what was the maximum score? So the marking scheme in CAT is +3 for every correct answer, -1 for every wrong answer. This is for MCQ type questions. Then for TETA questions, which is type in the answer type, I'll make a separate video for that. So for TETA questions, the marking scheme is +3 for every correct answer, 0 marks for every wrong answer. There is no negative marking for unattempted questions. So this is the marking scheme. So as per the number of questions and as per the marking scheme, these are the maximum marks for various years. When we talk about 90th percentile score, raw score, so when we talk about 90th percentile score in 22, this was only 26 marks. तो अगर आप केवल एक 26 मार्क्स लेकर के आए हैं CAT 2022 में तो आप 90th परसेंटाइल पे स्टैंड करते हैं. वहीं पे अगर हम 2021 की बात करें तो दिस वाज 25, 2020 की बात करें तो दिस वाज 24, 2019 की बात करें तो दिस वाज 33, 2018 की बात करें तो दिस वाज 34. गाइस, वन मोर थिंग टू नोटिस हियर, number of questions are also increasing. So these 2 years are having 22 questions each. Then 2020 is having 26 questions, and then 19 and 18 each is having 34 questions. तो ये आपका जो स्कोर है ये इन स्कोर्स में से है, इन मैक्सिमम स्कोर्स में से है. तो इट इज़ ऑल्सो ए साइन कि पेपर वॉज रियली डिफिकल्ट इन द पास्ट ईयर्स. जैसा कि आप देख सकते हैं कि 90th परसेंटाइल के लिए 2022 में आपको 26 मार्क्स लेकर के आने, और 2022 में जहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं वहाँ पे आप 24 मार्क्स पे ही 90th परसेंटाइल बना पा रहे हैं. तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कैट के लिए कोई एक एक स्टैंडर्डाइज्ड वे नहीं होगा कहने का कि ये डिफ़िकल्ट ही है, ये इजी ही है. तो इसमें रिलेटिवली एवरी ईयर जो है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी वेरी करता है. तो फिर हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ये हम इन दिस वीडियो ओनली विल बी टॉकिंग अ लिटिल फर्दर, राइट? और देखते हैं 95th परसेंटाइल के लिए ये स्कोर बन जाता है 33. फॉर जैसे ओवर द ईयर्स अगर देखें तो 31, 30, 42 एंड 41, यानी 102 मार्क्स में से अगर आप केवल एक 41 मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं तो आप 95th परसेंटाइल पे स्टैंड करते हैं, राइट? और 99th परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 66 मार्क्स अगर आपने 36 मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी रफली ये कितना बनता है 12 क्वेश्चंस. अभी आई एम नॉट सेइंग कि आप 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 100% एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो वो पूरा होगा. तो फॉर दैट हमने एक लीस्ट अटेम्प्ट सिनेरियो भी इसमें रखा है ताकि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने कि मिनिमम कितने सवाल अटेम्प्ट करके ये स्कोर बनाया जा सकता था. ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है. तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ we are doing the detailed analysis for 90th percentile over the past 5 years. So अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो you'll notice one thing कि these are the maximum scores, this is the required score for 90th percentile. तो अगर आपको 90 percentile बनाना है और अगर आप इन ईयर्स में स्टैंड करते हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए.
परसेंटेज स्कोर कितना बनता है ये? दिस इज ओनली 39.39, रफली 40%। यानी 100% में से अगर आप केवल 40% ऑफ द पेपर, 100% ऑफ द मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं तो आप 90th परसेंटाइल पे स्टैंड करेंगे। वहीं पे अगर ओवर द इयर्स हम देखें तो ये नंबर्स आपको कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे 37.87% था, दिस वाज 30.76 परसेंटेज, दिस वाज 32 अगेन 32.35, दिस इज 33.33। तो देखो यार, ये ना एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी का जो वेरिएशन है उसको भी शो कर रहा है। ठीक है, दीज आर द टोटल क्वेश्चंस। अब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ लीस्ट अटेम्प्ट सिनेरियो। तो मैंने क्या किया है बेसिकली, जैसे अगर हम बात करें कि जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं वो दो कैटेगरी में जाते हैं, या तो वो करेक्ट होगा या फिर वो इनकरेक्ट होगा। तो वॉट एवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी, तो वो होगा दैट विल बी सी प्लस आई। लेट्स से सी क्वेश्चंस करेक्ट, आई क्वेश्चंस इनकरेक्ट। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मैंने ये जो सिनेरियो बनाया है ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंसिडर करते हुए बनाया है। अगर उसमें टीटा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग का स्कोप खत्म हो जाता है, तो वो मैंने कंसिडर नहीं किया है। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग +3, सो दैट बिकम्स 3C +3 इंटू सी क्वेश्चंस करेक्ट है, और एवरी करेक्ट जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके लिए हमें मिल रहा है +3। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग -1, सो दैट बिकम्स 3C -I। नाउ दिस इज योर स्कोर। तो जैसे मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड स्कोर इज 26, तो अगर आप इसको 26 के इक्वेट करते हैं, यहाँ से आप करेक्ट और इनकरेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रफली। तो जैसे अगर हम देखें आई, दिस शुड बी इक्वल्स टू 3C -26। ये लीस्ट केस सिनेरियो लिया 90th परसेंटाइल के लिए। तो C की वैल्यू अगर आप रखते हैं 9, यानी 9 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं लीस्ट, गाइज अगेन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं इस सेशन के चलते कि क्रैकिंग दी क्यूए सेक्शन ऑफ कैट इज वेरी इजी। तो ये सिर्फ एक मिथ है और ये एक हाइप है कि पेपर इज डिफिकल्ट, पेपर इज फॉर मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मैं मेरा कोई ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग द डेटा, ये डेटा कह रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये लीस्ट केस सिनेरियो है कि 9 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं तो 9 इंटू 3 बिकम्स 27, 27 माइनस 26 दैट बिकम्स 1, यानी यहाँ पे आपको एक सवाल गलत करने का स्कोप मिल जाता है। तो आप ये नोटिस करें कि कैट 2022 में अगर आपने ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते और उसमें से 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए होते और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत भी रहा होता तो भी आपका मिनिमम 90 परसेंटाइल बनता। तो गाइज अभी आप मुझे ओरिजिनली बताओ कि जैसा कि हम देखें कि 2022 के पेपर को हम देखें, तो लेट्स गो बैक वन मोर टाइम। तो अगर हम 2022 की यहाँ पे बात करें तो 2022 में क्या स्प्लिट था, क्वेश्चंस का क्या स्प्लिट था? सो देवर 8 क्वेश्चंस फ्रॉम एरिथमेटिक। अभी ये एरिथमेटिक वाले टॉपिक्स आर वेरी इजी, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने पढ़े हैं स्कूल लेवल पे, राइट? अगेन 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम अलजेब्रा, देन वी हैव 3 and 3 ईच। तो लेट्स से कि अगर आपने एक 5-5 सवाल यहाँ से बना दिए होते, 5-5 क्वेश्चंस भी निकाल करके अगर बना दिए होते, तो कितना इजी है 90 परसेंटाइल स्कोर करना। तो द पॉइंट इज कि फिर भी हम वो क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वी लैक इन स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी कैसे इंप्रूव होती है, किस तरीके से हम ये सब चीजें सीखते हैं, मतलब जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी रखनी है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, वो सारी बातें अपनी जगह है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उस पर भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? तो आई होप आपको समझ में आया कि दिस इज सो इजी, मतलब 90 परसेंटाइल सिक्योर करना इट्स सो इजी एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट 1 ईयर। तो आप 5 साल का डेटा देखो आराम से तो आपको समझ में आएगा। देखो, सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट कैट 2020 की यार केवल एक अगर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते तो हम 90 परसेंटाइल पे स्टैंड करते। सो अगर आप देखें कैट 2021 को, तो यहाँ भी अगर आप 50% पेपर अटेम्प्ट करते हैं, यानी 22 क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस अगर आप सेलेक्ट करके अटेम्प्ट करते और उनमें से 9 क्वेश्चंस आप करेक्ट करते और 2 क्वेश्चन आपके अगर इनकरेक्ट भी होते, यानी आपकी 81.81% की एक्यूरेसी भी रहती। व्हाट इज एक्यूरेसी? तो ये मैंने जैसे प्रीवियसली हमने स्पीड मैथ्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं, वो आपकी एक्यूरेसी बन जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, पेपर में लेट्स से 150 क्वेश्चन है, आपने अगर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 100 में से अगर आपने 80 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए हैं तो आपकी एक्यूरेसी बन जाती है 80% की। सो दिस इज हाउ इट इज। तो अगर आप 11 क्वेश्चंस ओनली सेलेक्ट करके पूरे पेपर में से 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते और उसमें से 9 क्वेश्चन करेक्ट करते और 2 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो जाते, क्योंकि अभी आप सेलेक्टिव अटेम्प्ट कर रहे हो तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, राइट? क्योंकि दैट्स
ऑल अबाउट द लीस्ट केस सिनेरियो, राइट, कि आप अटेम्प्ट ही काफी सेलेक्टिव तरीके से कर रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग द गेस वर्क। सो ओनली 9 क्वेश्चंस अगर करेक्ट करते, 2 इनकरेक्ट करते, तो भी हमारा जो एक रिक्वायर्ड स्कोर था 25 मार्क्स का वो हमें अचीव हो जाता। तो ये कंपैरिजन है अगर आप देखें ओवर द इयर्स, तो जैसे 2022 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में 26 है, आपको केवल 26 में से कितने अटेम्प्ट करने थे? 12, नॉट इवन 50%। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 50% भी नहीं करना है आपको करेक्ट, तो 50% अगर आप अटेम्प्ट 50% से भी कम अटेम्प्ट करना था, दैट वाज 12, और उसमें से अगर अगेन 9 क्वेश्चंस आप करेक्ट करते और 3 गलत भी हो जाते, तो भी आप, यानी अगर 75% की एक्यूरेसी पे रखते, तो भी आपका जो एक रिक्वायर्ड स्कोर है वो आपको मिलता 2020 में, राइट। अगर 2019 की बात करें, कैट 2019 की अगर हम लोग बात करें, तो 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे, कितने में से? 34 में से गाइस। तो 34 का अगेन अगर 50% अपन निकालें, दैट बिकम 17, तो यानी हमें 50% भी अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस अगर हम निकालें और उसमें से 12 क्वेश्चंस करेक्ट, 3 क्वेश्चंस रॉन्ग, तो भी 80% एक्यूरेसी के साथ में हमारा 90 परसेंटाइल हम सिक्योर कर लेते। इसी तरीके से 2018 का देखें आप, तो ओनली 14 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे, 12 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने थे, और 2 क्वेश्चन अगर आप इनकरेक्ट करते, तो भी आपका डिजायर्ड स्कोर आपको मिलता। सो ये 90th परसेंटाइल की बात थी। अब 95 परसेंटाइल के लिए देखते हैं कि 95 परसेंटाइल पे हमें कितना अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए था। तो ये चीज आप देखो ध्यान से। तो 95 परसेंटाइल के लिए 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। अभी इफ यू रिमेंबर, 8 क्वेश्चंस 2022 में 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम अरिथमेटिक, 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम अलजेब्रा, यानी किसी ने अगर ये 50% भी अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो भी वो 95 परसेंटाइल पे स्टैंड कर सकता है। इट्स इजी टू क्रैक, राइट। तो देखो 15 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो काफ़ी सेलेक्टिव हो करके, और 12 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, तो भी हमारा जो डिजायर्ड स्कोर है 33 मार्क्स वो हमें मिल रहा है। 33 मार्क्स हमें चाहिए, जो कि हमें इजीली मिल रहा है। किसके लिए? कौन से परसेंटाइल के लिए? 95 परसेंटाइल के लिए, ठीक है। तो ये ओवर द इयर्स अगर हम देखें तो, सो दिस इज 13 क्वेश्चंस इन 21, यहां भी हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 22। देन 14 क्वेश्चंस, लेकिन कितने में से? 26 में से, ठीक है। और यहां अगर देखेंगे हम, तो रफली 50% है, 34 क्वेश्चंस टोटल हैं, 50% बनता है 17, तो रफली एक 50% है। 18 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने थे, 15 सही करने थे, 3 गलत करने का स्कोप हमारे पास में है। तो मैंने, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं भी मैंने एक 100% की एक्यूरेसी नहीं रखी है कि मतलब आप बोलें कि यार ये तो अचीवेबल है ही नहीं, कि मतलब आप 100% की एक्यूरेसी कैसे कर सकते हो। तो देयर इज अ स्कोप, बट देन नेगेटिव्स आर लेस। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग दिस सेलेक्टिव अटेम्प्ट, मतलब हम गेस वर्क वहां पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ओवर द इयर्स है। अब देखो आप कैट 2018 की अगर हम बात करें, सो 34 क्वेश्चंस वर देयर इन टोटल। आप 15 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, नॉट इवन 50%, और उसमें से 14 क्वेश्चंस करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो भी हम जो रिक्वायर्ड स्कोर है 95 परसेंटाइल के लिए वो बना पा रहे हैं, है ना। तो मतलब ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी का वेरिएशन भी शो कर रहा है, एट द सेम टाइम ये भी बता रहा है कि मतलब ये डुएबल टास्क है, ये बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है, ठीक है। लोग करते हैं ऐसा, लेकिन कौन से लोग करते हैं? केवल और केवल वो लोग कर पाते हैं जिनको पेपर की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है कि ये पेपर टेस्टिंग किस चीज की कर रहा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हमने 90 और 95 परसेंटाइल का डिस्कशन किया, 99 का अभी हम करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहां तक तो आपको समझ में आएगा यार, दो चीजों को चेज करके चलना है, वन इज स्पीड, द अदर वन इज एक्यूरेसी। तो आप ये दो बातों पे ध्यान रखिए। सेलेक्टिव आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, तो अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर वेरी वेरी श्योर सॉर्ट ऑफ कि भाई ये तो मेरा करेक्ट है ही है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यू नो लाइक मतलब आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो आई कैन नॉट, दिस पेपर इज नॉट फॉर मी। अगर ऐसा होता तो अभी आपके सामने है कि केवल एक 8 सवाल, मतलब एरिथमेटिक का पोर्शन भी अगर आप पूरा करके आ रहे हो, तो भी आप इजीली एक 90 परसेंटाइल टच कर सकते हो। मतलब इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट गाइस, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 99th परसेंटाइल। सो अगर 99 परसेंटाइल की बात करें और लास्ट ईयर की बात करें, तो कैट 22 की अगर बात करें, तो आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, और उसमें से 13 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने थे, एंड 3 क्वेश्चंस अगर आप इनकरेक्ट भी करते, यानी आपकी एक्यूरेसी रफली 81.25। तो यही हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी 85 से 90% के बीच में रहनी चाहिए। दिस इज अ गुड एफिशिएंसी, राइट। सो अगर आप 13 क्वेश्चंस करेक्ट करते, 3 इनकरेक्ट होते, यानी 16 का आपका टोटल अटेम्प्ट होता, तो आपका जो एक रिक्वायर्ड स्कोर है 36 मार्क्स का, वो आपको मिलता।
तो देखो मैंने यहाँ ये नहीं किया कि मैं कह रहा हूँ कि 12 अटेम्प्ट कर लो, 12 के 12 सही कर लो, 36 ले आओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल ही है, ऐसा होगा ही नहीं, बट एट द सेम टाइम लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाती है वो चीज़। तो ये था। देन इफ वी टॉक अबाउट द वेरी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर विच इज़ 21, तो 21 में 16 क्वेश्चंस, 14 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, तो यहाँ भी 87.5% की एक्यूरेसी हमें चाहिए। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि 5 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो इन 5 सालों में अगर आप परसेंटेज स्कोर को देखें, कौन से परसेंटाइल के लिए, 99 परसेंटाइल के लिए, तो 99 परसेंटाइल के लिए अगर आप परसेंटेज स्कोर को देखें तो यार ये ना एक 50 से, मतलब 50 से 60 के बीच में लाया कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ओवरऑल, अगर समझने की कोशिश करें, तो जितना मेरा मैक्सिमम स्कोर है उसका अगर मैं 50 से 60 परसेंटेज के बीच में अगर मेरा लाया करा, वो वेरी करेगा, मतलब आप पहले से नहीं एक्सपेक्ट करके जा सकते हो, पहले से कुछ भी ऐसा लाइक अज्यूम करके पेपर में नहीं बैठ सकते कि इतना मुझे करना ही है, ये है वो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएशन अपने आप में इस बात का साइन है कि मतलब 22 में 54.5% था, एट द सेम टाइम 21 में ही जस्ट उससे ही एक साल पहले ये 60% भी था। तो मतलब आप पहले से कुछ भी ऐसा नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पेपर के बारे में, यही इस पेपर की ब्यूटी है। तो आप अगर जैसे कैट की हम लोग बात करें, तो कैट में तीनों सेक्शंस की अगर हम बात करें, वीआरसी हो चाहे डीआईएलआर चाहे क्वांट, तो तीनों सेक्शंस में से जिसमें एक डेफिनेट सिलेबस हमें नोन है, प्रोवाइडेड है, हम हर चीज, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले किया, अभी आप डीआईएलआर में नहीं बोल सकते हो, है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो, जैसे वीआरसी की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली वहां पे हमें पता है कि आरसी आने वाला है, पैराजंबल आने वाला है, लेकिन आरसी कौन सा आने वाला है, मतलब फिलोसफी पे आएगा कि साइकोलॉजी पे आएगा, इकोनॉमिक्स पे आएगा, साइंस एंड टेक पे आएगा, वो आप नहीं कह सकते हो, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ सिलेबस नोन है कि आप सर्टेन हो कि यार एक सवाल इसमें से आएगा ही आएगा, मतलब एरिथमेटिक है तो एरिथमेटिक डोमिनेटिंग है, एल्जेब्रा है तो इक्वेशंस में से क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ्स में से आएंगे, फंक्शंस में से आएंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये ब्यूटी है इस सेक्शन की। तो फिर ये आपको कहाँ टेस्ट करेगा, तो ये आपको सरप्राइजेस देगा पेपर में। तो अगर आप पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट करके जा रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, तो दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है। और देखते हैं, तो जैसे अगर हम 2018 की बात करें, तो 2018 में भी आप देखो 102 मैक्सिमम स्कोर है, आपको 50% स्कोर करना था। 50% अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप इजीली जो है 99 परसेंटाइल टच कर सकते हैं। अब 50% अगर आप देख रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा ना, दो सेक्शंस आर डोमिनेटिंग, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। तो अगर ये दोनों पे भी बहुत प्रिपेयर हमें सारा ही करना है, वी नेवर नो, मैंने जैसा कि बोला कि एग्जाम गिव्स अस सो मेनी सरप्राइजेस, तो वी नेवर नो व्हाट विल कम इन आवर पेपर, बट देन अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और एक एक्स्ट्रा अटेंशन इन दोनों टॉपिक्स को दे दें, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा को, तो जो हमारा एक डिजायर्ड आउटकम हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो हमें डेफिनेटली मिलेगा, राइट। और देखते हैं, तो ये था 99th परसेंटाइल के लिए पूरा एनालिसिस। अब मेन बात ये आती है कि पहले अगर हम कंक्लूजन निकालें हमारी बात के, तो क्या है कंक्लूजन, ये कि इट्स वेरी इजी एंड अचीवेबल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डेटा कह रहा है कि अगर आप 90 परसेंटाइल मिनिमम लेना चाह रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों को फोबिया होता है मैथ्स का, तो गाइज अभी आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में बहुत हद तक आपको एक रिलैक्सेशन मिला होगा कि यस, इट्स इजीली डूएबल। All that you have to do is you have to be focused, you have to strategize your preparation, and you have to pick up the things जो कि पहले आपको थोड़ी कंफर्टेबल लगती है प्रिपरेशन में। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो सेक्शन है अरिथमेटिक वाला सेक्शन, जो कि हम लोगों ने 10th तक प्रिपरेशन में हमारे सिलेबस में हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। मतलब दीज आर द टॉपिक जो कि हर किसी ने अपनी स्कूल लाइफ में प्रिपेयर किए हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, चाहे रेशो, एवरेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रिपेयर की है, राइट। अब नाउ द मेन क्वेश्चन इज, ये हमने समझ लिया कि भाई ये डुएबल है और हम कर सकते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो देखो यार, ये एक 3-4 स्टेप का प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कि हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क की बात करें, अगर टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, टाइम एंड वर्क के बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्या हमारा यूनिटरी मेथड क्या है, क्या हमारा वन डे वर्क मेथड होता है, एलसीएम मेथड क्या होता है, ये अगर हमें पता ही नहीं है, किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि परसेंटेज चेंज होता क्या है, तो अगर केवल एक आपने फॉर्मूला मगअप भी कर लिया कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू, दैट्स नॉट द राइट वे। तो कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक क्लासेस जो है वो लेनी होंगी।
ये बहुत सारा फ्री स्टफ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हम लोग भी अपलोड करेंगे तो वहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और बहुत सारे लोग जो कि डिपेंडेंट होते हैं मेंटर्स पे, तो उनको एक इसकी स्ट्रेटेजाइज्ड वे में एक क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर वन थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट कम्स विद रेगुलर क्लासेस। दूसरी चीज़ जो चाहिए कि हमने क्लासेस में फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने परसेंटेज सीख लिया, हमें समझ में आ गया कि परसेंटेज क्या है, कैसे सॉल्व करना होता है। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज कि उसको हम इंप्लीमेंट करें। तो देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन। अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट, जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती हैं उसका एक सर्टेन एक्सटेंट जो है फैकल्टी मेंबर्स क्लासेस में आपको करके दिखाते हैं थ्रू हैंडआउट्स। तो देर आर सो मेनी हैंडआउट्स अटैच टू ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जैसे जैसे आप वो सॉल्व करते हैं आपको कुछ हद तक समझ में आता है कि मैंने परसेंटेज चेंज सीखा, अभी इसका ये एक एप्लीकेशन होने वाला है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, आप रेगुलर तरीके से हैंडआउट सॉल्व करेंगे और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो आप पूछेंगे। देन आपके मॉड्यूल्स यानी जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो आपको पूरा पूरा यूज़ लेना है अच्छे से और इसके भी डाउट्स आपको पूछने हैं। Then third and very most important part is you have to write regular mocks. Mocks पे हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और एक सेपरेट वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे, नॉट नाउ। सो वी हैव टू राइट रेगुलर मॉक्स एंड लिखने से भी मॉक अटेम्प्ट करने से भी ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उसका एनालिसिस। अभी आप एनालिसिस क्यों करते हो? तो आप किस तरीके के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, जो बात मैंने की ना कि हमें स्ट्रेटेजी, तो वो स्ट्रेटेजी वाला जो पार्ट है वो यहाँ से प्रिपेयर होता है। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी आ गई है, लेकिन हमें ये भी तो समझना जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस में हमें रिलेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए और स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस कैसे बिल्डअप करना है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस अगर कोई फॉलो कर रहा है, रेगुलरली इसको फॉलो कर रहा है, तो he or she is bound to be successful, no one can stop. तो नंबर वन थिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और नंबर टू उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। नंबर थ्री इज मॉक्स एंड उसका एनालिसिस, रेगुलर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कितने मॉक लिखने चाहिए, अ वीक हाउ मेनी मॉक शुड बी रिटर्न, ये सब इट्स टू अर्ली टू से। तो जैसे जैसे हम प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे इनके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं। तो अगर हम समराइज करें आज का सेशन, तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने सीखी वो थी कि हम किस तरीके से, क्या एक माइंडसेट हमारा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिलेबस को समझा कि ब्रॉडली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एरिथमेटिक, देन कम्स अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स। इसमें से एरिथमेटिक इज द पोर्शन जो कि हम लोगों ने टिल 10th स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है और हम स्टिल थोड़ा बहुत उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर हम जैसे फिर हम लोगों ने ट्रेंड देखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ओवर द ईयर्स, तो वो हमें समझ में आया कि प्री कोविड क्या था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, ड्यूरिंग कोविड क्या रहा, एंड देन पोस्ट कोविड पीरियड क्या है। अभी वी कैन नॉट से, इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि आने वाला जो पेपर है 23 का उसमें कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। हो सकता है अगेन वो 3 आवर्स वाले पेपर पैटर्न पे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है वो अभी भी स्टिल 2 आवर वाले पेपर पैटर्न पे रहे, तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। क्वांट सेक्शन की बात करें तो सिलेबस इज फिक्स्ड, टॉपिक्स यही आपके रहने वाले हैं। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी करता है, तो वो हमने 5 साल के डेटा में देखा, हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आया कि यस, इवन स्लॉट टू स्लॉट में ही हल्का फुल्का एक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, तो कोई किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं कर सकते हम लोग पहले से, राइट। और एक चीज़ हमें और समझ में आई कि पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये हमारा, बिकॉज आप एक चीज़ समझें, हम यहाँ पे IIT JEE के लिए अपीयर नहीं हो रहे हैं कि वो आपके हार्डकोर मैथमेटिक्स स्किल्स यूज़ कर रहा है या वो उनकी टेस्टिंग कर रहा है, आप एप्टीट्यूड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आप कितना स्ट्रॉन्ग IQ रखते हैं, आपका सिलेक्शन कैसा है, आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि 90 परसेंटाइल के लिए क्या एक अटेम्प्ट होना चाहिए और किन सेक्शंस पे अगर कमांड करें तो उससे वो इजीली अचीवेबल है। और देन वी टॉक्ड अबाउट 95th परसेंटाइल कि अगर 95 परसेंटाइल पे स्टैंड करना है तो क्या स्कोर होना चाहिए, 99 परसेंटाइल पे स्टैंड करना है तो क्या स्कोर होना चाहिए। और मैंने एक लीस्ट अटेम्प्ट वाला सिनेरियो लिया कि अगर आप मिनिमम इतने भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू डू, तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप जो एक डिज़ायर्ड स्कोर है वहाँ तक पहुँचते हैं।
देन फिर हम लोगों ने बात की कि प्रिपेयर कैसे करें, तो 3 स्टेप प्रोसेस की हमने बात की। ओवरऑल यही है, बाकी और डिटेल में तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। So one is conceptual clarity, the other one is implementation. For that we have to solve handouts, we have to solve modules, we have to practice so many questions from online test portals. Then we talked about the importance of mocks and analysis, क्योंकि mocks आपका दो चीज़ें आपके साथ में प्रिपरेशन में एड ऑन करता है, one is speed, the other one is accuracy. ये दोनों चीज़ें वहीं से बिल्डअप होती है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस और रेगुलर मेंटोरिंग फ्रॉम योर मेंटोर्स, राइट। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी अगर इस वीडियो ने थोड़ा बहुत भी वैल्यू आपकी प्रिपरेशन में ऐड की तो डू शेयर। आपको और क्या हमसे किस तरीके की हेल्प चाहिए, क्या और टॉपिक्स हैं जिन पे आप और अवेयरनेस चाहते हैं, तो डू कमेंट। विल ट्राई एंड विल मेक सो मैनी एज मैनी वीडियोज एज पॉसिबल फॉर यू, सो दैट यू विल नॉट फाइंड एनी हिंड्रेंस इन योर प्रिपरेशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक, डू शेयर, and please do subscribe this channel for so many further videos. Thank you so much.